go to the second book, which is Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlin's Zero Limits based on the practice of Ho'oponopono. अब अभी हम उस फीमेल का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे जिसको एस्थमा था 50 साल से, और वो डॉक्टर ह्यूलन के साथ हायट होटल में उस मीटिंग के लिए आई हुई थी डिनर पे. उनका एक्सपीरियंस है. यस, एंड रूबी विल बी रीडिंग फॉर अस. My lifelong search for an asthma cure was over. One mysterious evening, after over 50 years of asthma and allergies, this condition abruptly magically halted. Deadline February 25th, 2006. Earlier that day, while relaxing over an Austin Tex Mex lunch, I felt a quickening in my being. Oh, it felt very mysterious, like something was happening and I was somehow being worked on. A wave of love overwhelmed me, and then I resumed lunch. That evening in the hotel meeting room, an electricity filled the air, an inexplicable, inexplicable pulsing of excitement. Dr. Hewlin, the speaker, ended up sitting at my table. Midway through the meal, I told an asthma experience I had, and he used that later to springboard into his talk. Well, I was familiar with the Hawaiian Hona spiritual healing model, but not the healing and forgiveness methodology and philosophy at the heart of the healing, which he explained at length. Dr. Hewlin told us he was working on cleaning each of us in attendance at the dinner by reading our names and getting clarity and oneness with us. The evidence. How he does it is by expressing love for each person, asking for forgiveness for any wrongdoing, consciously or unconsciously, from the past or present of himself and his ancestors to us and our predecessors, all the way back to the beginning of time and microbic life forms. Wow, that's a lot to clear. So that he and we can all get back to true relationship in and of divinity. The next day unveiled the miracle at hand. I met my mentor from Joe Vitale's executive mentoring program and his wife for lunch. Being that I was from out of town and we had never met in person, I had to walk quite a few blocks to the restaurant and realized that I did not need an inhaler at all during the trek. That was most unusual and the first clue. They remarked how far it was from where my car was parked, and I told them that perhaps I no longer had asthma and that it felt like it never was so. Later that evening, I had the pleasure of dining with Dr. Hewlin, and we spoke of the healing of Ho'oponopono, and that now, having experienced its power in my life with asthma, I could go and help others with this problem. He also spoke of the importance of drinking water before each meal to flush out toxins and also to rid the home environment of clutter. Ahem. Well, the best got better and better. It's been nearly 6 months since, and even though I got bronchitis, I bounced back without medicines. I never wheezed or needed an inhaler or asthma drug of any sort. Since then, I have been in home with cats, dogs, and birds for hours at a time and had no whizzing, or need for inhalers. My lungs are clear as a bell, and I can breathe deeply and fully. And this for the first time ever. Wow. Dr. Hewlin, though you don't call it a healing or yourself a healer, you would say that the universe and my soul did it. Thank you. And thanks to Dr. Joe Vitale for showing Dr. Hewlin and a night of healing magic. I'm forever grateful. Martha Snee. Yeah.
So that's www.translimits.com. So this is मार्था का एक्सपीरियंस. अगर हमको याद है कि वो बहुत क्रिबिंग कर रही थी डिनर के टाइम, डॉक्टर ह्यूलन की टेबल पे बैठी हुई थी. तो एक्चुअली डिनर तो शाम को हुआ था, लेकिन दिन को कॉन्फ्रेंस थी, मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं, लाइक अ सेमिनार है ना, जहाँ पे एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू था, डॉक्टर ह्यूलन को सबको बताना था. तो डे में वो वाला इवेंट था, रात को डिनर था. तो डिनर में सब लोगों ने नहीं पे किया था. टोटल 100 लोगों ने साइन अप किया था उस सेमिनार में आने के लिए. तो 100 लोगों का जैसे सेमिनार, इनफॉर्मल से सेमिनार था डे में, और वो फिर सब लोग चले गए थे, और रात को फिर दोबारा से उसमें से 75 लोगों ने डिनर के लिए पे किया था. तो ये दोनों टाइम थी डॉक्टर ह्यूलन के साथ. दिन को भी थी जब 100 लोग थे, और रात को जब 75 डिनर पे थे तब भी थी. एंड दिन को इनको ये, मतलब जब डॉक्टर ह्यूलन सारा बता रहे थे और डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे थे और जिस तरह चैट कर रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि बहुत क्योंकि हमको याद है ना कि उस रूम में पहले एक्चुअली डॉक्टर ह्यूलन गए थे डॉक्टर जो वाइटाले के साथ सुबह, और उन्होंने जाके उस रूम को क्लीन किया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे दुखी लोग बैठे थे हमारे यहाँ पे आने के पहले, और मैंने वो एनर्जी सेंस कर ली है. उन्होंने ये कहा था. उन्होंने कहा था ये सिटी पूरी डेड है. ऑस्टिन के लिए बोला था ये सिटी पूरी डेड है. उन्होंने कहा इतने लोग इतने बिजी रहते हैं. उन्होंने कहा नहीं, उनमें एनर्जी नहीं है, उनका ऑरा नहीं है, सब परेशान है, सब दुखी हैं. और उन्होंने वहां पे भी उस रूम में भी सेंस किया था कि यहाँ पे बहुत सैड लोग बैठे थे जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सारी चीजें. तो डॉक्टर ह्यूलन ने लोगों के आने के पहले ही जाके उस पूरे हॉल में आई लव यू एंड प्लीज फॉरगिव मी वाला चैंटिंग करा था काफी देर तक. और वो ऑलरेडी रूम को क्लीन किया, और उस रूम को उन्होंने वाइब्रेशनली एनर्जी के हिसाब से रेडी किया उन लोगों से मिलने के लिए जो थोड़ी देर में आने वाले थे. उसके बाद वो 100 लोग आए. तब ये वाली लेडी मार्था जो थी ये वहां पे आई थी, और इनको लगा अंदर आते ही एक बहुत वियर्ड सी एनर्जी थी, कामिंग, सूदिंग, और उनको रूम में घुसते ही ऐसे लगा एज इफ एक वेव उनकी बॉडी में रश हुई है. और उनको 50 साल से क्रॉनिक एस्थमा था, एंड शी हैड बीन इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस सुनाया था हमको जब हम पिछला वाला चैप्टर कर रहे थे. तो मार्था को इतना ज्यादा इशू होता था, तो डॉक्टर ह्यूलन ने, मतलब वो दिन को जब वो गई ना तभी वो ठीक हो गई थी. जब दिन वाली कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर के लिए जब डिनर पे इनको वापस आना था रात को, तो जब बीच में जो गैप आया था उस सेमिनार से और डिनर के बीच में कुछ घंटों का ही होगा, 2-3 घंटों का, उसी वक्त इनको एक वेव ऑफ लाइक वो हीलिंग जैसा ऐसे लग रहा था इनको, जैसे मेरी पूरी बॉडी में से एक बिजली, शी कुड फील दैट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कोई सेंसेशन उनको आ रहा था. और उनको लग रहा था कि उनका पूरा हीलिंग हो गया, और सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी उनको आ रहा था सिर्फ वहां पे उस रूम में जाके, और डॉक्टर ह्यूलन के साथ जो भी उन्होंने 2-3 घंटे बिताए होंगे उसके बाद. एंड उन्होंने उनके साथ जो भी संगी साथी थे, जो उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने उनको बोला भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत इजीली पूरा, मतलब मैं बहुत ठीक फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और उनकी गाड़ी ना बहुत दूर पार्क थी, जो वेन्यू था हाइट होटल से वहां पे थोड़ी दूर पे पार्क थी. तो वो नॉर्मली उनको इतनी लंबी जब वॉक करनी होती थी, बिकॉज हमको पता है जो क्रॉनिक एस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो वो बहुत तेज तेज चल के अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी. और उनको लग रहा था अरे ये कैसे हो गया कि मुझे इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज अभी तक इतना लंबा वॉक अगर मेरा होता था तो आई हैड टू यूज द इनहेलर, है ना. तो उनको लगा कि अरे ये तो मैं पूरी ठीक हो गई, एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी. और वो बॉडी में खुद को फील हो जाता है ना, जैसे अगर बहुत वीकनेस आ रही हो और एकदम से आपको दैट सर्ज. तो वो दिन 26 फरवरी का दिन था, 2006 की ये वाली बात है. और कहती है उसी दिन एक दिन नहीं लगा मुझे 50 साल की प्रॉब्लम को ठीक होने में. उसके बाद शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी रात को डिनर भी होना है ना. फिर वो रात को जब डिनर के लिए गई वहां पे, तब वही, और बाय चांस ऐसा हुआ 75 लोग थे, और एक राउंड टेबल डिनर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8. तो बाय चांस उनका ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर ह्यूलन वाली ही राउंड टेबल पे बैठी, उनको वहीं पे जगह मिली, और बिल्कुल साथ में ही बैठी थी. तो ये वही फीमेल थी जिन्होंने अपने अस्थमा के बारे में बताया था और कहा कि मेरे तो ऐसे रिश्ते हैं कि वो मुझे देखने भी नहीं आए और मुझे बहुत ज्यादा अस्थमा है, आई एम इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल. तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको कहा था कि ड्रिंक वाटर, है ना. तो उनको स्पेसिफाई करके बताया था कि खाने के पहले पानी पियो अच्छे से, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं तुम्हारे अंदर के वो फ्लश आउट हो जाएंगे. तो वो खाने के पहले उन्होंने पानी पीना शुरू किया, और उन्होंने ये भी बोला कि अपने घर में से जो अनवांटेड चीजें हैं उनको डिक्लटर कर लो, उनको हटा दो घर से. तो उसके कारण भी ऐसा हो रहा होगा, मे बी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो चीज यूज नहीं, जैसे रुकी हुई घड़ी, जो स्पीकर है आप यूज नहीं करते हो, जो कपड़े आप कभी पहनते नहीं हो,
तो इसलिए मैं भी आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि वो चीज अपने घर से हटाओ, है ना। वो लालच या आलस, दो रीजन होते हैं जिसके कारण हम अनवांटेड चीजों को रखते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा मैंने ये वाली चीज की और मैंने बहुत अच्छे से थैंक यू, आई लव यू किया। और कहती है मैंने डॉक्टर ह्यूलन से एक नई चीज भी सीखी वहां पे, कि वो जब क्लीनिंग कर रहे थे तो वो बोल रहे थे दैट दैट मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उन सारी मेमोरीज के लिए, इंसेप्शन टिल टुडे। इंसेप्शन मतलब जब हम अमीबा मतलब माइक्रोबिक फॉर्म में थे ना, हम सब बैक्टीरिया की तरह थे पहले, रेप्टाइल्स, और उसके बाद ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई। तो कहते हैं फ्रॉम इंसेप्शन का मतलब बिल्कुल शुरू से जब जीव जंतु हम लोग थे तब से लेके आज तक, मैंने, मेरे रिश्तेदारों ने, है ना, मेरे परिवार वालों ने या मेरे पूर्वजों से अगर कोई ऐसी गलती हुई हो जिसके कारण ऐसी चीज आज मुझे देखने को हो रही है जो मेरी करंट सिचुएशन है, उसके लिए मैं दिल से फॉरगिवनेस मांगता हूँ एंड थैंक यू, आई लव यू। उस मेमोरी और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके एक ब्लेसिंग में ट्रांसम्यूट करने के लिए, गॉड की लव लाइट, है ना, इनटू हीलिंग, गॉड्स लव लाइट, इसको ट्रांसम्यूट करने के लिए। तो कहती हैं मुझे ये भी पता लगा कि कितने दिल से वो कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ जो मेरे एनवायरनमेंट में है वो मैंने किया है, और तब से लेके आज तक पता नहीं कौन से जन्म में कौन सा वाली ऐसी मेमोरी हुई है हमारे साथ, या हमने ऐसा कोई हरकत की हो, कोई ऐसा एक्शन किया हो जिसके कारण आज ऐसी सिचुएशन आई है। तो उन्होंने कहा वो इतने डीपली वो करके क्लीन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था, ये नई चीज सीखी थी कि ठीक है, अभी तक तो हम हमेशा लोगों को ब्लेम करते आ रहे हैं हर एक चीज के लिए, कि मेरे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, है ना। जैसे अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, गुस्सा ज्यादा करता है, कोई आपको इज्जत के साथ नहीं ट्रीट करता, तो उसमें उन्होंने कहा था ये आपको पैसे की दिक्कत आ रही है। तो ये चीज डॉक्टर ह्यूलन ने उन लोगों को बताई थी कि ये कुछ भी उनके कारण नहीं है, आपने अपने अंदर ऐसी मेमोरी या ऐसी एनर्जी को रख रखा है जिसके कारण वो चीज आपको, वो वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसीलिए वो ऐसे बोलते थे कि मुझे फॉरगिव करें उन सारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के लिए, है ना, जो मैंने इंसेप्शन टिल डेट, जो मैंने, मेरे रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, किसी ने भी किए हैं। तो उसके लिए मैं दिल से फॉरगिवनेस, क्षमा चाहता हूँ एंड थैंक यू, आई लव यू, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए। तो इस तरह करके वो प्रे करते थे। तो फिर उनको लगा कि हाँ देखो, सब ये अस्थमा भी जो मेरा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही थी ना किसी को कि हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आए, मुझे पूछते भी, मुझे ये भी नहीं करते, तो कह रहे थे कि नहीं ये सब मेरे ही कारण है। तो ये उनका एक्सपीरियंस है, और उनको एक दिन लगा अस्थमा जाने में पूरी तरह से। तो ये उनकी बहुत सुंदर अपनी लाइफ स्टोरी थी मार्था की, इसीलिए उन्होंने लिखा है फॉर एवर ग्रेटफुल। सो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू ओनली सो मच टुडे। ये वाला एक्सपीरियंस हम कल करेंगे। एन आयरिशमैन फाइंड्स अलोहा। So aloha actually means hi. I don't know. Aloha is also the name of the place. So whatever that means, हम कल पढ़ेंगे इसको. And thank you so much. रोज जो हम पढ़ते हैं उससे हम अपना टेक अवे लेंगे कि आज मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। किसी की पूरी लाइफ की दास्तान है वो। सोचो 50 साल कोई अस्थमा के साथ रहा हो, एलर्जी के साथ रहा हो। जैसे वो बोलती हैं कि अब मैं कैट्स के साथ, डॉग्स के साथ बड़ी आराम से रह पाती हूँ, बर्ड्स के साथ। पहले इनको नहीं रहा जाता था, मार्था को सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि अस्थमा के साथ एलर्जी आती थी। और ये 6 महीने के बाद इन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा डॉक्टर जो वाइटाले को, है ना, मतलब 6 महीने हो गए थे उनको डॉक्टर ह्यूलन से मिले हुए। और इन्होंने जब ये 6 महीने के बाद एक्सपीरियंस भेजा, तो इन्होंने कहा कि बीच में बस एक छोटा सा एपिसोड हुआ था जब मुझे ब्रोंकियल अटैक हुआ था, ब्रोंकाइटिस हुआ था, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। तो कहते हैं वो भी बिना दवा के पूरी तरह से ठीक हो गया था मेरा। तो उसके लिए मुझे दवा नहीं लेनी पड़ी, ओवरनाइट ठीक हो गया था क्योंकि इन्होंने क्लीनिंग की अपनी। अब इनको पता लग गया था कि किस तरह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कि जो भी हमारे जीवन में, अभी तक वो थोड़ा ब्लेम गेम कर रही थी कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, इनकी वजह से। फिर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए ये चीज मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि अगर हमारी 8.7 बिलियन पॉपुलेशन है तो 8.7 बिलियन लेन है। आप अपनी लेन में चलते हो, कोई किसी का कर्म अच्छा या खराब नहीं कर सकता। हाँ, आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हो, है ना, आपकी ब्लेसिंग एनर्जी के रूप में जरूर उसके जीवन तक पहुंचेंगी। तो बस इतना हम कर सकते हैं, अदरवाइज कर्म किसी और के हम नहीं बदल सकते, है ना। आप एनर्जी उनकी तरफ रेडिएट कर सकते हो, वो भी आप ही के दिल से जा रही है। उनके एक्शन ऑटोमेटिक चेंज होंगे जब आप अपनी तरफ से अच्छी एनर्जी जाओगे।
तो आपको क्या करना है, बस ये है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, दिस इज यूजलेस एंड फ्रिवलेस। तो हमको इसके बारे में कोई बात नहीं की कि उसने हमारे साथ ऐसे किया, वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उसने मेरा ये, इट रियली डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छे के लिए होता है ना। अगर आप देखोगे पीछे मुड़ के तो देर इज ऑलवेज अ रीजन, कुछ ना कुछ सिखाने। अब कार्मिक क्लोजर और किस तरह से होते हैं, ऐसे ही होंगे ना। अब अगर घर में कचरा आ गया है, आपको लगा है कल बहुत आंधी तूफान आया था, आज आप जब उसकी ब्रूमिंग मॉपिंग कर रहे हैं अपने घर की, तो उसमें खूब सारा कचरा निकल के तो आएगा ही आएगा ना। अब ऐसे थोड़ी बोलते रहोगे कि ये आंधी आई तो अरे कर लो उसको, है ना। हमारे पास पूरी पावर होती है अपनी जिंदगी को ट्रांसम्यूट करने की, एंड इतना सुंदर तरीके से लाइफ ट्रांसम्यूट होती है, और हर चीज का रीजन होता है ना। कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है तो हर चीज का रीजन होता है, हमको कुछ सिखाना पढ़ाना, और उसके बाद से वो कर्मा हमारा हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से चला जाता है। तो इसीलिए जस्ट इंजॉय ईच डे बाय टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक उस चीज के लिए जो आपके जीवन में हो रही है, और उसको 100% जिम्मेदारी लेके उसको कबूल करके आप क्लीन कर दो। क्लीन करना मतलब थैंक यू, आई लव यू, लव एनर्जी देना। लव एनर्जी देने को क्लीनिंग बोलते हैं। क्लीनिंग मतलब एक अंधेरे वाला कमरा है जहां से बदबू आ रही है, लेकिन वहां पे आपने गॉड की लव लाइट, एक डिवाइन एनर्जी से उसको प्रकाशित कर दिया उस रूम को। अब वहां पे रोशनी भी हो गई, और वो जो कूड़ा करकट था वो अपने आप गायब हो गया। एनर्जी इसी तरह वर्क कर सकती है। एनर्जी को फिजिकल कूड़े की तरह निकालने की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल कूड़ा अपने आप एक डिवाइन ब्लेसिंग में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पावर होती है, इमेजिन। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों से आप पूरी दुनिया बदल के पलट के रख सकते हो, इतनी पावर होती है। यू कैन मूव द माउंटेन्स विद द वर्ड्स, और ये वर्ड्स ही तो हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर हम इसी रियल में रहेंगे, हमारी लाइफ में बहुत सुंदर तरीके से क्लोजर्स होंगे। एंड इमेजिन, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर एक इंसान इस लाइफ टाइम में, जैसे आप सब और मैं, है ना, इस लाइफ टाइम में जितने भी लोग हमको यूट्यूब पे सुन रहे हैं अभी, बाद में हम अपने पीछे के 7 जनरेशन और आने वाले 7 जनरेशन के कर्मा को चेंज कर सकते हैं। इतना ज्यादा पावर होती है एक लाइफ में, है ना। सोचो कि कितने सारे आपके पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने अलग अलग रूप से सफर किया होगा अपने जीवन में, जो भी उनके जैसे भी कर्मा रहे होंगे। और जो आने वाले 7 हमारी पुश्तें हैं, आपके बच्चे और फिर उनके बच्चे, आप उनके भी कर्मास पूरे चेंज कर रहे हो। तो 7 generations behind and 7 generations ahead, you are cleaning. When you are cleaning your own life, तभी तो जनरेशनल उसका बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर ह्यूलन ये बोलते थे कि मेरे पूर्वजों से, या मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वाले, है ना, उनसे इंसेप्शन से आज तक कुछ थॉट्स, वर्ड्स या एक्शंस में कुछ ऐसे हुआ, उसको क्लीन करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे आप में पावर आ जाती है। और फिर उसके बाद जब आप ये वर्ड्स यूज करते हो, थैंक यू, आई लव यू, और ये बोलना तो हम अपने आप को ही बोल रहे हैं ना, अपने सोल को बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सोल में ही वो सारी मेमोरी है डिपॉजिटेड। तो उसको क्लीन करना, और फिर उसके साथ आप उसका रिजल्ट देखोगे, है ना। लेकिन जो चीज आप लोगों में मैं देखती हूँ, कंसिस्टेंसी की गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लो। उसको कंसिस्टेंसी करते रहो, नॉट 108 बार। अगर नहीं करते हो तो जैसे 3 बार, मैंने भी कल सारे 11 11 बार ही किए हैं। मैं तो 4 अलग अलग चीजों के लिए करती हूँ। तो कल इतना व्यस्त डे था, है ना, बहुत बिजी डे था। तो मैं शाम को तो 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे तो मैं फ्री हुई हूँ। और फिर उसके बाद भी बिजी रही कुछ देर तक, बिकॉज यही ऑफिस का मास्टरमाइंड का काम चल रहा था। और इसमें तो मैंने भी कल चारों को 11 11 बार ही किया है। जब मैं फ्री हुई कुछ, आई थिंक मेडिटेशन के बाद, है ना, 9:40 पे हमारा मेडिटेशन कल खत्म हुआ था, फुल मून मेडिटेशन रात को। तो 9:40 फ्री होने के बाद मैंने उन चारों के लिए रियलाइज किया, मैंने ओपन ओपन तो किया ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट 11 11 बार चारों के लिए किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। लेकिन छोड़ा तो नहीं ना, किया जरूर। हाँ ठीक है, हमेशा 108 करती हूँ, बल्कि 108 × 3 भी करती हूँ, उनमें से एक, उन 4 में से एक जो है। लेकिन किया, तो कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रही। तो मैं अब गिल्ट में नहीं घूम रही कि मैंने छोड़ दिया, मैंने किया नहीं। अगर मैं 11 बार भी नहीं कर सकती, अगर मुझे बहुत नींद आ रही होती तो शायद मैं 5 ही बार करती, लेकिन छोड़ती तो नहीं ना। तो इस तरह से आप करोगे तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा।
So that is all we have. And thank you, Ruby, for reading so beautifully. You've got such a nice voice.